So then I am going to start the class. Yes, sir. Okay, that's good. That's good. So today we are going to discuss lecture 8 of group 16. Sorry. Today we will discuss lecture 8 of inorganic chemistry, P block chemistry. This is group 16th elements. This is the last topic of group 16th elements. In this lecture, we will discuss oxo acids of sulfur. So we'll discuss over here oxo acids of sulfur. बहुत ही important है, competitive में इससे questions आते हैं exam में. So we'll discuss over here oxo acids of sulfur. So let us discuss the topic, that's oxo acids of sulfur. The topic is oxo acids of sulfur. Oxo acids of sulfur. Now this is very important topic. I'll star mark this topic. This is very important topic. That's oxo acids of sulfur. तो बेसिकली ऑक्सो एसिड्स में कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है. जो भी हमारा ऑक्सो एसिड होगा सल्फर का जो भी ऑक्सो एसिड होगा दैट शुड कंटेन एटलीस्ट उसमें एटलीस्ट दैट शुड कंटेन 1s डबल बॉन्ड O. एटलीस्ट दैट शुड कंटेन 1s डबल बॉन्ड O. हर किसी ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में एटलीस्ट 1s डबल बॉन्ड O होना चाहिए एंड प्लस इसके साथ में SOH ग्रुप होना चाहिए या SSH ग्रुप होना चाहिए. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, या इसके पास SOH ग्रुप होना चाहिए या SSH ग्रुप होना चाहिए. दिस इज वन कंडीशन. जब भी कोई ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर बनाएंगे उसमें देयर शुड बी एटलीस्ट 1s डबल बॉन्ड O, देयर शुड बी 1 SOH ग्रुप एंड देयर शुड बी 1 SSH ग्रुप, either SOH or this SSH group. Now number second, जो हमारा सल्फर है it forms oxo acids of two series, means it will form oxo acids in low oxidation state, or it may form oxo acids in high oxidation state. It may form oxo acids in high oxidation state. So oxo acids in low oxidation state, they are called as acids, and oxo acids in high oxidation state, they are called ic acid. So these will be called as ic acids, ic acid series of acids, and they will be called as S acid series of acids. These oxo acids of sulfur, they may contain over here. Number third important point is there may be SS linkage. In certain oxo acids, there may be SS linkage. When there is SS linkage present, they are called thioacids. Then the category of oxo acids is called thioacids. Now, what are thioacids? Which contain SS linkage, and what are S series of acids which have low oxidation state? What are ic series of acids which have high oxidation state? So basically, हम इनको categorize करेंगे. We will categorize them into 4 categories. Oxo acids of sulfur are categorized as. हम इनको ऐसे categorize करते हैं. Number first is sulfurous acid series. Sulfurous acid series will possess very low oxidation state. Number second is sulfuric acid series. Sulfuric acid series of acids. And number third is thionic acid series. Thionic acid series, where if or here we can have SS bonds. And number fourth is peroxy acid series. And number fourth is peroxy acid series. In the last year examination, question from this have been asked. Therefore, question may be asked mostly from this or from this.
So there are expectations that questions may come from this concept or this concept. Let us see over here. So basically, sulfur forms four series of oxoacids. One is sulfurous acid series. In this case, sulfur will be in very low oxidation state. Oxidation state will be low, and in this case, oxidation state will be high. And in this case, there will be S linkage, and in this case, there will be peroxy linkage or O linkage. This is how we can recognize these four different types of oxyacids. Now let us discuss them one by one. इनका डिस्कशन करेंगे हम one by one. So basically it is easy to remember these acids. बहुत easy है इनको remember करना. Now you can easily remember them. Now let us take first series of acids, that is sulfurous acid series of acids. Number A series is sulfurous series of acids. तो यहाँ पे बेसिकली बस आपको एक चीज याद रखना है, सल्फ्यूरस एसिड की फार्मूला याद रखनी है. यहाँ पे नंबर फर्स्ट इसमें कैटेगरी में आएगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. बस आपको इसी एक को पकड़ के रखना है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में H2SO3. So this is our sulfurous acid. तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे, इट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट वन S डबल बॉन्ड O होना चाहिए, एटलीस्ट वन OH होना चाहिए. तो हमने यूटिलाइज किया एक हाइड्रोजन को, विल यूटिलाइज वन मोर हाइड्रोजन ओवर हियर. So we can write OH over here. This is H2SO3. So this is the formula. This is the formula of sulfurous acid. This is our sulfurous acid. Sulfurous acid. Now this is the formula of sulfurous acid. तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दिस इज -1, दैट इज -2, दिस इज +2. यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1. So the oxidation state of sulfur in this case is +4. That means oxidation state is low over here. Oxidation state is low over here. Number second over here is, number second in this case is thiosulfurous acid. Thiosulfurous acid. This one is very important. Thiosulfurous acid. This is the most important among all. Thiosulfurous acid. तो thiosulfurous acid का अगर हम डिस्कस करेंगे, thiosulfurous acid की, thiosulfurous acid, since it is thio, it should contain SS linkage. यहाँ पे SS linkage, SS bond होना चाहिए. ना आपको sulfurous acid लेना है और इसमें SS bond होना चाहिए. तो बेसिकली क्या करना है आपको, एक ऑक्सीजन के बदले सल्फर को रिप्लेस करना है. मींस आपके पास सल्फ्यूरस एसिड है, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से सिंगल बॉन्ड OH. मैं इस O को S से रिप्लेस करूंगा. दिस इज S. नाउ दिस इज द फार्मूला ऑफ thiosulfurous acid. Now this can be also represented like this. This is S double bond S, single bond OH, single bond OH. Both of these are formulas of thiosulfurous acid. Now see, हम इस फार्मूला से यहाँ तक कैसे जाएंगे. अगर आपके एग्जाम में आएगा, which of the following is thiosulfurous acid? This is true and this is also true. Both of these are thiosulfurous acid. क्या किसी को कोई परेशानी है इसमें? Both of these are thiosulfurous acid. पायरो भी अभी बताऊंगा, डोंट वरी, अभी पायरो भी बताऊंगा. थयोसल्फ्यूरस एसिड टेक्स्ट के जो भी हैं वो सब बताऊंगा. टेक्स्ट में ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ ही का दिया हुआ है. टेक्स्ट में स्ट्रक्चर कुछ एसिड्स का दिया हुआ है, सभी एसिड्स का नहीं दिया हुआ है, लेकिन नेम दिया हुआ है सभी का, इसलिए हमें डिस्कस सभी करने हैं. ना सी, इस फार्मूला से यहाँ तक कैसे जाएंगे. अगर मैं यहाँ पे काम करूंगा, यहाँ पे इस सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन दिस सल्फर. अगर मैं इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, अगर मैं इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं अगर यहाँ शिफ्ट करूंगा, एंड दिस विल बी शिफ्टेड ओवर हियर, मींस रेजोनेंस करूंगा, तो यहाँ से क्या कंसेप्ट आएगा, S सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ से OH, यहाँ से डबल बॉन्ड S, यहाँ H. Since lone pair takes part in bond formation, यहाँ पे positive charge. Now in the next step, what will happen? This negative charge will abstract to proton,
इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज। तो यहाँ से हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, S सिंगल बॉन्ड OH single bond OH double bond S. Therefore, that's why both of these are true. That's why both of these are true. I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। Now, number third is dithionous acid. This is again very important one. So, number third is dithionous acid. Number third is dithionous acid. Again, this is very important. तो डाइथायोनस एसिड, इसी को हम कहते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ना आपको याद होगा मैंने कहा था हाइपो उस चीज को कहते हैं जहां पे कमी होती है, जहां पे कमी होती है। ना सी हमारा सल्फ्यूरस एसिड एस डबल बॉन्ड ओ एच, मैं एक और मॉलिक्यूल इसका लूंगा एस डबल बॉन्ड ओ एच। नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा OH है, इस एक्स्ट्रा OH को मैंने यहाँ पे खत्म किया, तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा बाय SS बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड डाइथायोनस एसिड। नाउ व्हाई इट्स कॉल्ड हाइपो, बिकॉज अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे OH गायब है, यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड हाइपो। तो डाइथायोनस एसिड में SS बॉन्ड होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हिच ऑफ द oxo acids of sulfur contain SS linkage. Dithionous acid contains SS linkage. Now this is dithionous acid. It contains SS linkage. Basically, अगर आप previous year question solve करोगे, most of the questions will be on this dithionous acid, thiosulfuric acid, thiosulfurous acid like that. उसके बाद हमारे पास आता है one more. उसके बाद हमारे पास आता है, we'll discuss one more, that's called pyrosulfurous acid. The fourth one is pyrosulfurous acid. Pyrosulfurous acid. The fourth one is pyrosulfurous. मैं अस एसिड की बात कर रहा हूं, अभी मैंने एक एसिड नहीं डिस्कस किया। pyrosulfurous acid. तो pyrosulfurous acid बेसिकली हमें मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड से। It will be formed from sulfurous acid. This is sulfurous acid and this is sulfurous acid. तो अगर आप सोचते हो कुछ ऐसा होगा यहाँ पे पायरो मीन्स हीट, जैसा मैंने कहा था इसमें, जैसे मैंने डिस्कस किया था ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में, तो यहाँ पे आप हीट करोगे एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, देन इट इज रॉन्ग। दिस इज नॉट द फार्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरस एसिड। दिस इज नॉट द फार्मूला ऑफ पायरोसल्फ्यूरस एसिड। दिस इज नॉट द फार्मूला। दिस इज रॉन्ग। दिस इज नॉट द फार्मूला। दिस इज नॉट फार्मूला। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो एक्चुअली इसकी फार्मूला क्या है, विल डिस्कस इट। इसकी फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज। पायरोसल्फ्यूरस एसिड क्या है, इसकी फार्मूला हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज। वी हैव S डबल बॉन्ड O single bond OH single bond OH and we have one more S double bond O single bond OH single bond OH। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सल्फर पे। सल्फर ने 4 बॉन्ड से बनाई, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, इट विल डिपेंड विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। ना टेल मी विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। अगर मैं इसको A लिखूंगा, इसको B लिखूंगा, आप बताओ मुझे विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, इस टेल मी विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। कौन जल्दी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा? ए, अरे ए कहां से देगा? विच वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक? सल्फर। तो बी ही रह गया ना, सल्फर देगा ना। सी क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल इजीली डोनेट लोन पेयर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसका साइज बड़ा है, लार्ज साइज एटम विल इजीली डोनेट इट्स लोन पेयर। फॉर एग्जांपल हमारे पास F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। दिस इज द मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज द लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक बिकॉज ऑफ साइज। तो साइज भी मैटर करता है, इसलिए यहाँ से सल्फर अटैक करेगा। सल्फर यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। अगर सल्फर अटैक करेगा विल गेट
अगर सल्फर अटैक करेगा विल गेट S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस OH को यहाँ लिखो OH। सल्फर ने सल्फर पे अटैक किया, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया यहाँ पे? क्या आपको मेरी बात समझ, मैंने थोड़ा ऑर्गेनिक को यहाँ पे अप्लाई किया, क्या आपको समझ में आ गई मेरी बात? टेल मी, अगर नहीं तो मैं इसको एक बार फिर लिखूंगा। यहाँ पे सल्फर ने अटैक किया सल्फर पे, सल्फर ने अटैक किया सल्फर पे। अब कैसे अटैक किया? इस सल्फर पे, बिकॉज इस सल्फर में पोलैरिटी है। यहाँ पे इस सल्फर को हमने पोलर बनाया, फिर ये वापस आ गया, डेल प्लस बन गया, इसने अटैक किया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ सी और हियर व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन द नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इस बॉन्ड को, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इस बॉन्ड को, क्या इस बॉन्ड, लेट अस टेक दिस बॉन्ड, विल शिफ्ट इट ओवर हियर। अगर ये शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारे पास कंपाउंड आएगा S सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH एंड H सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, इस पॉजिटिव चार्ज को हम डिमिनिश कर सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को हम डिमिनिश कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम डिमिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छा सॉरी, इससे पहले मैं पहला वाला स्टेप लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया था ना, दिस हैज बिकम O माइनस, दिस हैज बिकम O माइनस। मैंने इस चार्ज को यहाँ शिफ्ट किया, दिस हैज बिकम O माइनस। अब इस O माइनस को आप वापस ला यहाँ पे, OH विल गेट रिलीज, यहाँ से OH निकलेगा। Now C will get over here S double bond O single bond OH single bond OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड S, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पे OH, और यहाँ से हमें निकला OH माइनस। नाउ व्हाट विल हैपन? OH माइनस यहाँ पे क्या करेगा? नाउ व्हाट विल हैपन? OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एंड विल गेट द कंपाउंड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH double bond O single bond S double bond O single bond OH. So this is the formula of pyrosulfuric acid. This is the formula of pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid। क्या एक बार फिर बताऊं? क्या एक बार फिर बताऊं या आपको समझ में आ गया? फार्मूला ऑफ pyrosulfuric acid, that's why it is very important, that's why this is very important। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? स्ट्रक्चर ऑफ pyrosulfuric acid। Now that's why it's important. Pyrosulfuric acid contains SS linkage also. Means it's a type of series of acids. Contains SS linkage. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा एक बार फिर रिवाइज करो। Now see over here. ये मेरे पास S डबल बॉन्ड O है, ये मेरे पास OH है, ये मेरे पास OH है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। अगर लार्ज साइज एटम पे लोन पेयर होगा, देन इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है? सल्फर। तो सल्फर यहाँ अटैक करेगा, बिकॉज इस बॉन्ड को ब्रेक होना है। तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस OH। तो यहाँ से सल्फर के पास OH और एक है, इसने सल्फर को अटैक किया, सल्फर के पास O माइनस है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। द नेक्स्ट स्टेप, ये वापस आएगा और ये यहाँ से जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन? अब ये क्यों वापस आएगा? OH निकलेगा, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ S डबल बॉन्ड OH P डबल बॉन्ड्स और O इज थर्मोडायनामिकली फेवरेबल, दे आर थर्मोडायनामिकली फेवरेबल, दैट्स व्हाई OH के बदले हम बना सकते हैं यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे OH। ना जो ये हमारा OH यहाँ से निकला, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन और हियर, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा दिस साइड,
तो यहाँ से हमें मिलेगी इसकी फार्मूला एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच. Now see over here double bond O single bond S double bond O single bond Y. This is the formula of pyrosulfurous acid. Pyrosulfurous acid. I hope आपको ये अब समझ में आया होगा. और किसको ये बात समझ में आ गई? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड वाली बात किसको समझ में आ गई? टेल मी, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड वाली बात किसको समझ में आ गई? टेल मी, ये बात आपको समझ में आ गई? रिपीट इट वंस अगेन. एक बार फिर रिपीट करो. एक बार फिर रिपीट करो. मुझे बता, एक बार फिर रिपीट करो. मारिया कहती है रिपीट इट वंस अगेन. क्या एक बार फिर रिपीट करो? क्लियर ना? ओके, थैंक यू. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज ऑफ एसिड्स को. नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमने डिस्कस किया बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज ऑफ एसिड्स को. नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. So number second point is our sulfuric acid. Now what is the formula of sulfuric acid? The formula of sulfuric acid is H2SO4. The formula of sulfuric acid is H2SO4. तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर हम लिखेंगे. दिस विल बी S double bond O, S double bond O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH. यहाँ हमने कब से पढ़ा है? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. -2 -2 +2 +2 -1 +1 -1 +1. Overall, the oxidation state of sulfur comes out to be +6. Higher oxidation of state of sulfur. That's why it's called sulfuric acid. That's why it's called sulfuric acid. So sulfuric acid, this is one number first. Sulfuric acid series of acids, this is first. Number second in this case is thiosulfuric acid. Thiosulfuric acid. The second one is thiosulfuric acid. तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड को बेसिकली हम कैसे लिखेंगे? थायोसल्फ्यूरिक एसिड. थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एक्चुअली देयर शुड बी वन SS लिंकेज. देयर शुड बी SS लिंकेज. थायोसल्फ्यूरिक एसिड में देयर शुड बी SS लिंकेज. तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सल्फ्यूरिक एसिड को फिर से लिखूंगा S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH. Now what I will do over here, मैं किसी भी ऑक्सीजन को रिप्लेस करूंगा सल्फर से. फॉर एग्जांपल मैं इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करूंगा सल्फर से. S double bond O, I'll replace this oxygen by sulfur. इस ऑक्सीजन को मैं रिप्लेस करूंगा सल्फर से. S double bond O, double bond O, single bond OH, single bond SH. Now you know that there is lone pair of electron. ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है. तो मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लिखूं. Now see over here we have double bond SH. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज इसको एक्सेप्ट करेगी एंड वी विल गेट द रिजल्ट ओवर हियर. S, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड S. आपको समझ आया? ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है, ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है. ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर, दे आर ट्रू. तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में बेसिकली हमें सल्फर लाना है किसी भी ऑक्सीजन की जगह. किसी भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर लाना है. यू विल गेट थायोसल्फ्यूरिक एसिड. Now number third is pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid. Now pyrosulfuric acid में बेसिकली हम दो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स को लेंगे. We'll take two sulfuric acid molecules over here. Pyrosulfuric acid में बेसिकली हम टू सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स लेंगे. Now अब आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? क्या सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यहाँ पे सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसलिए सल्फर यहाँ से अटैक नहीं करेगा. इसलिए डायरेक्टली इनको हीट करके यहाँ से वाटर मिलेगा.
So the formula of pyrosulfuric acid will be S double bond O, single bond OH, double bond O, single bond O, S double bond O, single bond OH, single bond OH. तो इसमें SOS लिंकेज प्रेजेंट है। अब तक जो भी हमने एसिड्स पढ़े, एसिड्स डिस्कस किए किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, इसमें SOS लिंकेज प्रेजेंट है। उनमें से पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में SOS लिंकेज प्रेजेंट है। क्या नो सर? क्या नो सर? अच्छा ये पुराना वाला है, क्लियर नहीं हुआ, नो सर। ओके, अच्छा ये लोन पेयर की बात हो रही है, नो सर, ठीक ठीक। तो इसमें SOS लीकेज प्रेजेंट है, इस एसिड में SOS लीकेज प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SOS लिंकेज इसमें प्रेजेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें SOS लिंकेज प्रेजेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थायोनिक एसिड सीरीज को। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में आपको 3 एसिड याद रखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में 4 एसिड याद रखते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे थायोनिक एसिड सीरीज। नंबर सी पार्ट विल बी थायोनिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज। तो थायोनिक एसिड सीरीज को डिस्कस करेंगे, इसमें आपको जनरल फार्मूला आता है, यह द जनरल फार्मूला। सो द जनरल फार्मूला इज H2, general formula of acid is in this case Sn plus 2 O6. In your text there are given number of these types of the acids in the first line. So H2SN plus 2 O6, or you can remember it like this, आप ऐसे भी इसको remember कर सकते हो, you can remember it like this, आप ऐसे भी इसको remember कर सकते हो। इससे बेटर है आप ऐसे रिमेंबर करो, S डबल बॉन्ड O, double bond O, single bond OH. There is Sn type of molecule, and we have S double bond O, single bond OH. Now your जो N है यहाँ पे, N का value it can be 0, 1, 2, 3 any positive number. अगर N 0 होगा, अगर N 0 होगा, if N is equal to 0, then you will get this type of compound, S double bond O, single bond OH. यहाँ पे N 0 है, therefore nothing is over here, S double bond O, single bond OH. Now what is the formula? H2S2O6, H2S2O6, H2S2O6। इसको हम कहते हैं डाइथायोनिक एसिड, इसको कहते हैं डाइथायोनिक एसिड। एक एसिड सीरीज का एसिड है, देयर इज वन सल्फर सल्फर बॉन्ड, इसको कहते हैं डाइथायोनिक एसिड। नाउ इफ n इज इक्वल टू 2, मोस्टली यहाँ पे n का वैल्यू इवन होता है। इफ n इज इक्वल टू, आई विल राइट द फॉर्मूला S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। तो n का वैल्यू 2 है, मींस 2 S और हैं, दीज आर द 2 S। तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। नो व्हाट इज द फॉर्मूला? H2S4O6। now this will be called 1 2 3 4 tetrathionic acid, tetrathionic acid, this will be called tetrathionic acid। तो आप किसी भी एसिड की फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो, यू कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनी एसिड। अगर आपको ये वाली फॉर्मूला याद, थायोनिक एसिड में अगर आपको ये वाली फॉर्मूला याद है, you can draw the structure of any acid, this is the general formula for polythionic acid। पॉलीथायोनिक एसिड के लिए ये जनरल फार्मूला है, if there is 2 it is di tri tetra like that, you can draw the structure of it। उसके बाद आता है लास्ट सीरीज ऑफ एसिड्स, द फोर्थ सीरीज ऑफ एसिड्स, दैट्स द लास्ट सीरीज। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर ऑक्सी सीरीज ऑफ एसिड्स, फॉर ऑक्सी सीरीज ऑफ एसिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 एसिड्स इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 एसिड्स इंपॉर्टेंट है फॉर ऑक्सी सीरीज ऑफ एसिड्स। तो पहला आता है इसमें, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉक्सी बॉन्ड होगा, ले लो सल्फ्यूरिक एसिड S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, H2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, लेट मी चेक इट वंस। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज OOH,
Now see how many oxygens are there. 1, 2, 3, 4, 5. This acid has the formula H2SO5. It's called Carrose acid. Carrose acid. Now अगर एग्जाम में आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज Carrose acid, तो आप ऑक्सीजन गिन लेना. यहाँ पे Carrose में 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स हैं, तो Carrose acid में भी ऑक्सीजन 5 होंगे. इट्स कॉल्ड Carrose acid. तो Carrose acid में ऑक्सीजन 5 होंगे, Carrose में लेटर्स भी 5 आते हैं. उसके बाद एक और इसका इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. तो इसको हम कहते हैं पेरोक्सी मोनो भी. इसको कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स 1 OO लिंकेज. इसको पेरोक्सी मोनो भी कहते हैं. इसको हम पेरोक्सी मोनो भी कहते हैं. पेरोक्सी डाई की बात करेंगे. पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड. पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड. पेरोक्सी डाई, यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम कहेंगे पेरोक्सी मोनो. पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड. तो बेसिकली लास्ट ईयर आया था, which of the following contains peroxide linkage, या how many peroxide linkages are present in the compound. तो peroxide डाई की अगर बात करेंगे, हमारे पास होगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH. डाई की बात हो रही है, यहाँ पे भी S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. ना इसमें इन दोनों के बीच में peroxide linkage होगी. दिस इज peroxide linkage. ना सी इसकी फार्मूला H2, यहाँ पे S2, 1 2 3 4 5 6 7 8 O8. तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं जनरल नेम मार्शल्स एसिड. मार्शल्स एसिड. ना आप मार्शल्स एसिड में अल्फाबेटिक्स गिन लो. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ से मार्शल एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मार्शल एसिड में 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेटर्स भी 8 हैं. ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया है. दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. So this is Marshall acid. Marshall acid में 8 oxygen atoms present हैं. So this is the discussion of oxo acids of sulfur. क्या आपको ये क्लियर हो गया? Then we'll see question. There are four S double bonds in pyrosulfuric acid. There are 4 double bonds in pyrosulfuric acid. There are 4 what double bonds? SO double bonds. SO डबल बॉन्ड्स की बात हो रही है ना. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे था हमारा ना. दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे बात हो रही है ना. सी इसकी बात कर रहे हो. देयर आर 4 सल्फ्यूरिक एसिड बॉन्ड्स. दिस इज सल्फ्यूरिक. हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होना चाहिए, बिकॉज हम दो H2SO4 यूनिट्स को गैदर करते हैं. यहाँ पे डबल बॉन्ड O होना चाहिए, बिकॉज दिस इज H2SO4, दिस इज H2SO4. नाउ क्लियर है ना. क्लियर है. ओके ओके. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन एक दो देखेंगे इसमें. लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन. तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दे दो. मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दे दो. मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो मुझे बता, लेट दिस इज ए. तो मुझे बता ए के साथ कौन मिलेगा, इसके साथ कौन मिलेगा. ए के. लेट दिस इज बी. तो बी के साथ कौन, सी के साथ कौन, और डी के साथ कौन. लेट दिस इज 1 2 3 4. इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, खुद ही करोगे इस क्वेश्चन को. मुझे बोलो, आप इस क्वेश्चन को खुद ही करोगे बाद में, या आप इस क्वेश्चन को बाद में करोगे. देन हाउ कम आई विल नो. तो आपको यूट्यूब पे इसका आंसर देना पड़ेगा. मैं इसको लिखूंगा फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना होगा आपको यूट्यूब पे. क्या आप वहां पे इसका आंसर दोगे, सो दैट आपको एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी. एक बार और करने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. दैट इज गुड, बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. नाउ लेट मी सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन. व्हिच एसिड possesses peroxy bond. तो कौन से एसिड में peroxy bond प्रेजेंट है. Carrose एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. तो मुझे बता peroxy bond किसमें प्रेजेंट है.
मुझे बताओ परऑक्सी बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? अरे नीलोफर 4 कहाँ? शाफिया वेरी गुड 1। नीलोफर 4 कहाँ? अभी मैंने कारोज का की कहानी बताई थी। कारोज में परऑक्सी बॉन्ड होता है, परऑक्सी मोनो इसी को कहते हैं, और इसका नाम ही परऑक्सी है, इसमें परऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इसका नाम ही वेरी गुड कारोज एसिड, तो इसमें परऑक्सी मोनो अगर इसको कहते हैं, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कारोज एसिड। तो एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन को लिखूंगा। तो आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, what is the correct structure of which one? Now let me take which one I will take. I will take this one. Sulfurous acid. Thiosulfurous acid. So option number 1 over here is S double bond S single bond OH single bond OH. Option number second over here is S. We have over S double bond O single bond SH single bond OH. And option number third over here is S double bond O single bond SH single bond OH. And option number fourth is all of these. तो अब मुझे बताओ करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल ऑफ दीज। तो अब मुझे बताओ करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है? जल्दी, एक ही मिनट रह गया इस सेशन को। करेक्ट स्ट्रक्चर, अरे थर्ड कहाँ से यार, रेजोनेंस होगी ना, सब करेक्ट है।